नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप अपनी स्टडीज़ को घर से अच्छे से कर रहे हैं। टुडे इट इज़ योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 4th चैप्टर 1 and chapter name is input output and storage devices part 2. Okay, so in our last class we have discussed about input devices. ठीक है, तो हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? डिवाइसेस थ्रू विच यू गिव इंस्ट्रक्शन और एंटर डेटा इन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, joystick, trackball, scanner, webcam, light pen, touch screen. So these all are the input devices which is used to give instruction or enter data into a computer. Okay, so now in our today's class we will discuss about output devices. आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे जहाँ पे हमें जो इनपुट हमें दिया है उसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट है वो हमें जो प्रोवाइड करती है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्लेज आउटपुट और रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर हैज प्रोसेस्ड द डेटा एंटर्ड यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा एंटर किया गया है वो प्रोसेसिंग के बाद में जो हमें रिजल्ट देता है या जो आउटपुट देता है वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है? आउटपुट डिवाइसेस पे। So there are lots of output devices. First output device is monitor, then speaker, headphone, printer and projector. So these are the major output devices. We will discuss about these output devices today with the help of this video. Please listen this video carefully and then I will discuss about the particular devices. Okay, so here is the video. Please listen carefully and try to understand. Jenny, you explained functionality of input devices really well. Oh, thanks, Jim. Can you also explain some of the output devices? Sure, Jim. Working of output devices are opposite to the input devices. You mean output devices convert information from machine acceptable form to human understandable form? That's correct. Now that you know the basic functionality, let's look at the various output devices in detail. So what you have understand that output devices are the devices which show us the result or output given by the input devices. Okay, the output devices displays the output and result after the computer has processed data entering the input devices. ठीक है, so here is some output devices. Listen. Let's learn about output devices now. Output devices display output or results after the computer has processed the data entered using input devices. Some commonly used output devices are: a monitor displays objects like text and images on a computer. It is also known as Visual Display Unit (VDU). It looks like a television. So first output device is monitor. मॉनिटर पे हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ टेक्स्ट देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे। और जो आपका मॉनिटर है ये एक टेलीविज़न की तरह आपको दिखाई देता है। जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी क्या होता है, कुछ टीवीज़ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ एलसीडी टीवीज़ होते हैं। तो आपकी जो मॉनिटर है वो भी सेम आपके टीवी की तरह ही अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। और वो जो मॉनिटर है उस पर आप आपने जो भी इनपुट दिया है उसका रिजल्ट टेक्स्ट और इमेजेस या वीडियो या किसी और फॉर्म में आप अपने मॉनिटर पे उसे
देख सकते हैं. It is also known as Visual Display Unit VDU. A television. Speakers are output devices used to play voice, sound, or music. Sometimes speakers are inbuilt in computers. Speakers are available in different shapes, sizes, and colors. So now next output device is speakers. आपने speakers देखे हैं. Speakers से क्या होता है? Speakers को output device क्यों बोला गया? Why we use speaker as a output device? क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं या हम किसी की भी आवाज़ सुनते हैं टीवी के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, तो वो बाहर कैसे आती है? वो बाहर आती है उसके स्पीकर्स के थ्रू. अगर हम टीवी में या कंप्यूटर में या मोबाइल में हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो सॉन्ग हमारे कानों तक कैसे पहुंच रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. अगर स्पीकर नहीं होंगे तो क्या होगा? सॉन्ग प्ले तो होगा लेकिन हमें सुनाई नहीं देगा. क्यों? क्योंकि वो उस सिस्टम से बाहर ही नहीं आ पाएगा. तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में जो इनपुट दिया गया है, जो सॉन्ग प्ले करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो स्पीकर एज अ आउटपुट डिवाइस उस सॉन्ग को बाहर लेके आता है और वो सॉन्ग हमें सुनाई देता है. स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस यूज टू प्ले वॉइस, साउंड एंड music. Sometimes speakers are built in computers. Speakers are available in different shapes, size and colors. Speakers बहुत बार built in भी होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ही स्पीकर लगे हुए होते हैं, उन्हें हम built in speakers बोलते हैं. जो स्पीकर्स किसी भी सिस्टम के का इंटरनल पार्ट होता है या उसके अंदर लगा हुआ होता है, तो हम ये बोलते हैं कि ये built in स्पीकर्स हैं. तो अगर आपके स्पीकर जो है वो कंप्यूटर में लगे हुए हैं तो हम उन्हें बिल्ट इन बोलेंगे. अदरवाइज हम बाहर से स्पीकर अटैच कर सकते हैं विद अवर कंप्यूटर. और स्पीकर जो है वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं एंड कलर्स के हो सकते हैं. सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज Headphones can be used in place of speakers to listen to music, sound, or voice if you don't want to disturb people around you. So now next output device is headphone. तो हेडफोन का यूज़ हम क्यों करते हैं इन प्लेस ऑफ स्पीकर्स? अगर हमें सॉन्ग सुनने हैं लेकिन हमें स्पीकर पे नहीं सुनने हैं. क्यों? क्योंकि स्पीकर से जो सॉन्ग है वो बाकी लोगों को भी सुनाई देते हैं और बाकी लोग उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं. तो हम ऐसे में जो सॉन्ग्स हैं वो हम हेडफोन पे सुन सकते हैं. जैसे हमने इनपुट डिवाइस में देखा था माइक. ठीक है. सो इनपुट डिवाइस में हमने देखा था माइक. तो माइक का यूज़ करके हम एक इनपुट दे रहे थे, किसी भी हमारी आवाज़ का कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम माइक के थ्रू. तो वो क्या है? वो इनपुट डिवाइस है. सेम वैसे ही हेडफोन जो है ये आउटपुट डिवाइस है. विद द हेल्प ऑफ हेडफोन हम जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसे हम सुन सकते हैं. सेम स्पीकर की तरह ही वो जो साउंड है या जो म्यूज़िक है उसे कंप्यूटर से बाहर लेके आएगा. इसीलिए उसे हम आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं. सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज Q. A printer is used to print images and documents on paper. A printed copy is called hard copy. There are different types of printers: dot matrix printer, inkjet printer, and laser printer. A projector is used to display images. So next output device is printer. प्रिंटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है. आपने इनपुट डिवाइस में स्कैनर को देखा था. स्कैनर से हम क्या कर रहे थे? किसी भी पेज को स्कैन करके हम एज अ इनपुट डिवाइस उसे कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहे थे. नाउ प्रिंटर क्या करेगा? अगर हमने कोई पेपर को स्कैन किया है और हमें उसका प्रिंट आउट भी लेना है, या हमने कोई पेपर टाइप किया है अपने पीसी में और हमें उसे ऑन पेपर वो चाहिए, तो हम वहाँ पे प्रिंटर का यूज़ करेंगे. A printer is used to print images and document on a sheet of paper. A printed copy is called a hard copy. अगर हमें कोई भी शीट एज अ हार्ड कॉपी चाहिए तो हम वहाँ पे प्रिंटर का यूज़ करेंगे. देर आर 3 टाइप ऑफ प्रिंटर: डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर.
सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ प्रिंटर्स. डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी होते हैं, इंकजेट भी होते हैं, एंड लेजर प्रिंटर भी होते हैं. सो प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस. आपका जो डेटा आपने अपने पीसी में बनाया है या लिखा है या टाइप किया है या स्कैन करके आपने अपने पीसी में लेके आए, उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, किसी पेज पे कन्वर्ट करने के लिए हम प्रिंटर की हेल्प लेते हैं. तो प्रिंटर क्या कर रहा है? प्रिंटर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस. सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज Laser printer. A projector is used to display images and documents on a white surface. It emits light on the surface to project images displayed on a computer. सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर आप सबने देखा हुआ है. स्मार्ट बोर्ड जो हम अपने स्कूल में यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी प्रोजेक्टर लगे हुए हैं. तो प्रोजेक्टर क्या करता है? अ प्रोजेक्टर इज यूज टू डिस्प्ले द इमेज एंड डॉक्यूमेंट ऑन अ सरफेस. किसी भी सरफेस पे किसी इमेज को या डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं. ये क्या करता है? ये जो प्रोजेक्टर है ये उस पर्टिकुलर सरफेस पे एक लाइट को फोकस करता है, एक लाइट देता है और हमें वो जो कंटेंट है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है. लाइक हमारे कंप्यूटर में जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसी सेम कंटेंट को अगर हम किसी प्रोजेक्टर पे या वाइट बोर्ड पे या किसी और सरफेस पे देखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे. प्रोजेक्टर उस पर्टिकुलर सरफेस पे लाइट एमिट करेगा और वहाँ पे हमें हमारे कंप्यूटर का जो कंटेंट है वो दिखाई देगा. सो कंप्यूटर के जो कंटेंट है उसको बाहर लेके आ रहा है प्रोजेक्टर. सो प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. नाउ these all are the output devices. First output device was monitor, then speaker, then headphone, then printer, and then projector. So these all are the output devices. इन सारी आउटपुट डिवाइसेस को आप यूज़ करके अपने कंप्यूटर से या सिस्टम से आउटपुट ले सकते हैं. Let's recall what we have learned. Output devices display output or results after the computer has processed the data entered using input devices. Some most commonly used output devices are monitor, speaker, headphone, printer, projector, etc. So output devices are which display output or result after the computer has processed data and entered by the input devices. Input devices के थ्रू जो भी डेटा एंटर किया गया है उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट कौन दिखाता है? आउटपुट डिवाइसेस. Some commonly output devices are monitor, speakers, headphone, printer and projector. These are the devices. Now it's a quiz time. So here is a quiz. A dash is also known as a visual display unit. Visual display unit हम किसको बोलते हैं? मॉनिटर को. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. Click on submit. That's right. A monitor is also known as a visual display unit. Continue. Speakers are available in different shape, size and color. So speakers जो हैं वो different shape, size और color के available हैं. So it's true. Submit. That's right. Now it is your chapter 4 today, and it is your homework. Now do paste the picture of all output devices in your notebook. आपको सारी output devices जो मैंने आपको बताई है उनकी pictures आपको with name अपनी copy में paste करना है. Do all the computer work in Interleaf notebook. Interleaf notebook में आपको सारा work करना है. And the remaining topics of this chapter we will discuss in our next class. तो तब तक आप इसे लर्न करें, पढ़ें. सारी आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे एंड ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much.